السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں جو آپ کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، کس نے کہا ہے کہ لفظ اور معنی میں وہی رشتہ ہے جو پانی اور تری میں ہے؟ آپشن 1 ہے عبد القادر جرجانی، آپشن 2 ابن عباد، آپشن 3 عبد القادر بیدل، آپشن 4 توسی۔ جواب ہو جائے گا کہ عبد القادر بیدل نے کہا ہے کہ لفظ اور معنی میں وہی رشتہ ہے جو پانی اور تری میں ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، مغربی شعریات میں استعارے کو مرکزی مقام حاصل ہے تو سنسکرت اور عربی شعریات میں مرکزی مقام حاصل ہے، یعنی بقول شمس الرحمن فاروقی۔ آپشن 1 ہے تشبیہ، آپشن 2 آپشن 2 مضمون، آپشن 3 علامت، آپشن 4 حیت۔ جواب ہو جائے گا مغربی شعریات میں استعارے کو مرکزی مقام حاصل ہے تو سنسکرت اور عربی شعریات میں علامت کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، انگریزی میں کس کے لیے وزن ضروری ہے؟ آپشن 1 پوئٹری، آپشن 2 پروز، آپشن 3 ورڈز، آپشن 4 فکشن۔ جواب ہو جائے گا انگریزی میں ورڈز کے لیے وزن ضروری ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال، ترکیب کے طور پر قصیدے اور غزل میں کیا فرق ہے؟ آپشن 1 ردیف و قافیہ، آپشن 2 تسلسل، آپشن 3 بحر، آپشن 4 کوئی بھی نہیں۔ جواب ہو جائے گا ترکیب کے طور پر قصیدے اور غزل میں جو فرق ہے وہ تسلسل کا فرق ہے، یعنی قصیدے میں جو ہوتا ہے ایک ربط ہوتا ہے، ایک تسلسل ہوتا ہے، جبکہ غزل کا ہر شعر جو ہوتا ہے وہ جداگانہ ہوتا ہے، اپنے آپ میں ایک مکمل اکائی ہوتا ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے آج جو یوں خوشنما نور سحر رنگ شفق، قصیدے کا شاعر کون ہے؟ آپشن 1 ہے سودا، آپشن 2 مرزا غالب، آپشن 3 ذوق، آپشن 4 شوق۔ جواب ہو جائے گا اس قصیدے کا یہ جو مصرع ہے، یعنی ہے آج جو یوں خوشنما نور سحر رنگ شفق، اس قصیدے کے شاعر جو ہیں وہ شیخ محمد ابراہیم ذوق ہیں۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، قصیدے کے اجزاء ترکیبی میں تشبیب کے بعد جز ہوتا ہے؟ آپشن 1 مدحیہ، آپشن 2 دعائیہ، آپشن 3 ابتدائیہ، آپشن 4 گریز۔ جواب ہو جائے گا قصیدے کے جو اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں ان میں تشبیب کے بعد جو جز ہوتا ہے وہ گریز کا جز ہوتا ہے، یعنی تشبیب کے اشعار کے بعد گریز کے اشعار آتے ہیں، پھر اس کے بعد مدح اور اس کے بعد دعائیہ وغیرہ کے اشعار آتے ہیں۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، مہدی افادی کس تنقید سے وابستہ تھے؟ آپشن 1 ہے ترقی پسند، آپشن 2 تاثراتی، آپشن 3 رومانیت، آپشن 4 مارکسی۔ جواب ہو جائے گا مہدی افادی جو تھے وہ تنقید کے رومانیت سے، یعنی رومانی تنقید سے وابستہ تھے۔ درست جواب آپشن نمبر 3 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ہندوستان کی 2 الہامی کتابیں ہیں، وید مقدس اور دیوان غالب، کس نے کہا ہے؟ آپشن 1 ہے عبد الرحمن بجنوری، آپشن 2 ہے نیاز فتح پوری، آپشن 3 ہے کالی داس، آپشن 4 جگن ناتھ آزاد۔ جواب ہو جائے گا ہندوستان میں الہامی کتابیں 2 ہیں، ایک وید مقدس اور دوسرے دیوان غالب۔ یہ قول جو ہے عبد الرحمن بجنوری کا ہے۔ درست جواب آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے،
किसने कहा कि अंगारे समाज पर पहला वहशियाना हमला है? ऑप्शन 1 है सैयद अब्दुल्ला, ऑप्शन 2 है अजीज़ अहमद, ऑप्शन 3 वज़ीर आगा, ऑप्शन 4 इमदाद मामसर। जवाब हो जाएगा अंगारे को समाज पर पहला वहशियाना हमला करार देने वाले अजीज़ अहमद हैं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है रोशनाई के मुसन्निफ किस तहरीक से वाबस्ता थे? ऑप्शन 1 है जदीदियत, ऑप्शन 2 माबाद जदीदियत, ऑप्शन 3 तरक्की पसंद, ऑप्शन 4 हल्का अरबाब ज़ौक़। जवाब हो जाएगा रोशनाई के मुसन्निफ जो है ये तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। वाज़ेह हो कि रोशनाई के जो मुसन्निफ है वो सज्जाद ज़हीर हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल किस नक्काद का ख्याल है कि अदब मकसद नहीं ज़रिया है? ऑप्शन 1 अख्तर हुसैन रायपुरी, ऑप्शन 2 मजनू गोरखपुरी, ऑप्शन 3 सज्जाद ज़हीर, ऑप्शन 4 एहतशाम हुसैन। जवाब हो जाएगा कि अदब मकसद नहीं ज़रिया है, ये ख्याल सैयद एहतशाम हुसैन का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद किस शहर में डाली गई? ऑप्शन 1 है दिल्ली, ऑप्शन 2 लखनऊ, ऑप्शन 3 आगरा, ऑप्शन 4 लाहौर। जवाब हो जाएगा हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद लाहौर में डाली गई। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है जब शायरी में अलामत इस्तिआरा इस्तेमाल किया जाता है तो बात डैश 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 है। ऑप्शन 1 फैलती है, ऑप्शन 2 खटकती है, ऑप्शन 3 सिमटती है, ऑप्शन 4 जज्ब होती है। जवाब हो जाएगा कि जब शायरी में अलामत इस्तिआरा वगैरह इस्तेमाल किया जाता है तो बात सिमटती है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है किस मुहक्किक ने कहा है कि इब्रानी और सिरियानी और कदीम फ़ारसी में शेर के लिए वज़न हकीकी ज़रूर न था? ऑप्शन 1 है मरवान बिन अबी जाफ़र, ऑप्शन 2 इब्न अबाद, ऑप्शन 3 आयशा, ऑप्शन 4 तवासी। जवाब हो जाएगा कि ये कौल जो है तवासी का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है अरब शाहनामा को किस नाम से पुकारते थे? ऑप्शन 1 है कुरान नातिक, ऑप्शन 2 शेरुल अजम, ऑप्शन 3 कुरानुल अजम, ऑप्शन 4 शेरुल अरब। जवाब हो जाएगा अरब लोग जो थे वो शाहनामा यानी शाहनामा जो है ये फिरदौसी की तसनीफ़ है, इसको कुरानुल अजम के नाम से पुकारते थे। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है इब्न रशीक अरबी अदब के मैदान में अहमियत रखते हैं यानी किस सिन्फ में अहमियत रखते हैं? ऑप्शन 1 है शायरी, ऑप्शन 2 है तनकीद, ऑप्शन 3 है सवाने, ऑप्शन 4 है कसीदा। जवाब हो जाएगा इब्न रशीक अरबी अदब के मैदान में यानी तनकीद के मैदान में अहमियत रखते हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है मुल्ला वजही की सबरस में दिल और नज़र क्या है? ऑप्शन 1 है बाप बेटा, ऑप्शन 2 बाप जासूस, ऑप्शन 3 बेटा जासूस, ऑप्शन 4 कोई भी नहीं। जवाब हो जाएगा मुल्ला वजही की जो सबरस है उसमें दिल और नज़र जो है वो बेटा और जासूस होते हैं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है बकौल शमशुर रहमान फ़ारूकी अगर हम बदकिस्मती से मगरबी शेरियात की रोशनी में नताइज निकालते हुए अदम तवाज़ुन का शिकार हुए तो होगा यानी क्या नतीजा होगा इसका? ऑप्शन 1 है गलत, गुमराह कुन, इंसाफ पर मबनी होगा, ऑप्शन 2
गलत, गुमराह कुन, नहीं, इंसाफ पर मबनी होगा। ऑप्शन 3 गलत, गुमराह कुन और बेइंसाफ़ी पर मबनी होगा। ऑप्शन 4 है कोई कॉल भी सही नहीं है। इसका जवाब हो जाएगा यानी शमशुर रहमान फ़ारूकी का जो ये कॉल है कि अगर हम बदकिस्मती से मगरबी शरियात की रोशनी में नताइज निकालते हुए अदम तवाज़ुन का शिकार हुए तो नताइज जो होंगे वो गलत, गुमराह कुन और बेइंसाफ़ी पर मबनी नताइज होंगे। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है अमीर खुसरो को किसका मौजिद माना जाता है। ऑप्शन 1 है वासौख्त, ऑप्शन 2 मुस्तज़ाद, ऑप्शन 3 मुकर्निया, ऑप्शन 4 है मसनवी। जवाब हो जाएगा अमीर खुसरो को मुकर्निया का मौजिद माना जाता है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है डॉक्टर शमशुल्लाह कादरी के मुताबिक सिराज औरंगाबादी का इंतकाल डैश 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 में हुआ। ऑप्शन 1 है 1118 हिजरी, ऑप्शन 2 1177 हिजरी, ऑप्शन 3 1168 हिजरी, ऑप्शन 4 1173 हिजरी। जवाब हो जाएगा डॉक्टर शमशुल्लाह कादरी के मुताबिक सिराज औरंगाबादी का इंतकाल जो है वो 1168 हिजरी में हुआ। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद किस सन में डाली गई। ऑप्शन 1 है 1938, ऑप्शन 2 1939, ऑप्शन 3 1935, ऑप्शन 4 1940। जवाब हो जाएगा हल्क़ा अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद जो है वो 1938 में लाहौर में डाली गई थी। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है अख्तर हुसैन रायपुरी के उस मकाले की निशानदेही कीजिए जो तरक्की पसंद का नुक्ता आगाज़ भी है। ऑप्शन 1 है अदब सिर्फ अदब, ऑप्शन 2 अदब और समाज, ऑप्शन 3 अदब और लुत्फ़, ऑप्शन 4 अदब और ज़िंदगी। जवाब हो जाएगा अख्तर हुसैन का वो मकाला जो तरक्की पसंद तहरीक का नुक्ता आगाज़ भी माना जाता है वो अदब और ज़िंदगी है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है लंदन में किन मुसन्निफ़ीन का पहला ऐलाननामा तैयार किया गया। ऑप्शन 1 है तरक्की पसंद, ऑप्शन 2 जदीदियत, ऑप्शन 3 माबाद जदीदियत, ऑप्शन 4 कोई भी नहीं। जवाब हो जाएगा लंदन में तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन का पहला ऐलाननामा तैयार किया गया था। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है शमशुर रहमान फ़ारूकी के मुताबिक अदब अवामी मकासद नहीं डैश 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 को सामने रखा जाना चाहिए। ऑप्शन 1 है इंसानी मकासद, ऑप्शन 2 अदबी मकासद, ऑप्शन 3 फ़नी मकासद, ऑप्शन 4 कोई भी नहीं। जवाब हो जाएगा शमशुर रहमान फ़ारूकी के मुताबिक अदब में अवामी मकासद को नहीं बल्कि इंसानी मकासद को सामने रखा जाना चाहिए। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है अल्लामा शिबली किस तनक़ीदी दबिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। ऑप्शन 1 है तासुराती, ऑप्शन 2 तरक्की पसंद, ऑप्शन 3 फ़नी मकासद, ऑप्शन 4 कोई भी नहीं। जवाब हो जाएगा अल्लामा शिबली नुमानी जो है ये तनक़ीदी दबिस्तान के फ़नी मकासद से ताल्लुक़ रखते हैं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है दास्तान गुल सनोबर का खालिक कौन है। ऑप्शन 1 है सरूर, ऑप्शन 2 है इंशा, ऑप्शन 3 नसीम चंद्र हरी, ऑप्शन 4 फ़ताही नेशापुरी। जवाब हो जाएगा दास्तान गुल सनोबर के खालिक जो है ये नसीम चंद्र हरी हैं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है नावल ज़िद्दी के तख्लीक़कार। ऑप्शन 1 जिलानी बानो, ऑप्शन 2 इस्मत चुगताई,
ऑप्शन 3 बानो कुस्सिया, ऑप्शन 4 मुमताज़ शेरी। जवाब हो जाएगा नावल ज़िद्दी की तख्लीक़कार जो है ये इस्मत चुगताई हैं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है मंटो के खाकों का मजमुआ डैश डैश डैश। ऑप्शन 1 है धुआं, ऑप्शन 2 गंजे फरिश्ते, ऑप्शन 3 लज्जत संग, ऑप्शन 4 यजीद। जवाब हो जाएगा मंटो के खाकों का मजमुआ जो है वो गंजे फरिश्ते के नाम से है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है क़ुर्रतुल ऐन हैदर के किस अफसाने में हाजी सलीम आफंदी का किरदार है। ऑप्शन 1 है रोशनी की रफ्तार, ऑप्शन 2 है एतराफ़, ऑप्शन 3 जिला वतन, ऑप्शन 4 मलफूज़ात हाजी गुल बाबा। जवाब हो जाएगा क़ुर्रतुल ऐन हैदर के अफसाने में यानी मलफूज़ात हाजी गुल बाबा में हाजी सलीम आफंदी का किरदार है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है दास्तान बागो बहार में कौन से शहर की तहज़ीब की अक्कासी है। ऑप्शन 1 है दिल्ली, ऑप्शन 2 लखनऊ, ऑप्शन 3 रामपुर, ऑप्शन 4 भोपाल। जवाब हो जाएगा दास्तान बागो बहार जो है इसमें दिल्ली शहर की तहज़ीब की अक्कासी है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है बागो बहार में दूसरा दरवेश किस मुल्क की सैर करता है। ऑप्शन 1 है यमन, ऑप्शन 2 रोम, ऑप्शन 3 चीन, ऑप्शन 4 फारस। जवाब हो जाएगा बागो बहार में दूसरा दरवेश जो है ये मुल्क फारस की सैर करता है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है मिर्ज़ा हादी रुस्वा के किस नावल में लखनऊ की ज़वाल आमदा तमद्दुनी ज़िंदगी की तस्वीर मिलती है। ऑप्शन 1 है शरीफज़ादा, ऑप्शन 2 उमराव जानदा, ऑप्शन 3 अख्तरी बेगम, ऑप्शन 4 अफशा राज। जवाब हो जाएगा मिर्ज़ा हादी रुस्वा के नावल यानी ये उमराव जानदा है इनका नावल जो कि इनका शाहकार नावल है। इसमें लखनऊ की ज़वाल आमदा तमद्दुनी ज़िंदगी की तस्वीर मिलती है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपनी किस तसनीफ़ के ज़रिए मुसलमानों को जिहादी नहीं बल्कि इज्तिहादी बनने का दर्स दिया है। ऑप्शन 1 है फसाने मुब्तला, ऑप्शन 2 इब्नुल वक्त, ऑप्शन 3 रोयाए सादिका, ऑप्शन 4 बनातुन्नाश। जवाब हो जाएगा डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपनी तसनीफ़ यानी ये उनका नावल है रोयाए सादिका इसके ज़रिए मुसलमानों को जिहादी नहीं बल्कि इज्तिहादी बनने का दर्स दिया है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है अंग्रेज़ों ने प्रेमचंद के किस अफसानवी मजमूए को ज़ब्त किया था। ऑप्शन 1 है सोज़े वतन, ऑप्शन 2 ख्वाब ख़याल, ऑप्शन 3 वारदात, ऑप्शन 4 ज़ादेरा। जवाब हो जाएगा अंग्रेज़ों ने प्रेमचंद के पहला अफसानवी मजमूआ जो सोज़े वतन के नाम से शाये हुआ था इसको ज़ब्त किया था। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है वली दक्कनी की वफ़ात किस सन में हुई। ऑप्शन 1 है 1134 हिजरी, ऑप्शन 2 1141 हिजरी, ऑप्शन 3 1155 हिजरी, ऑप्शन 4 1079 हिजरी। जवाब हो जाएगा वली दक्कनी की वफ़ात जो है वो 1155 हिजरी में हुई। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल जो है इसमें सवाल नहीं है बल्कि सिर्फ ऑप्शन है इसलिए हम इसे आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है डिप्टी नज़ीर अहमद किस किताब की बदौलत तहसीलदार बनाए गए। ऑप्शन 1 है ताज़ीरात हिंद, ऑप्शन 2 तर्जुमा कुरान, ऑप्शन 3 अफसाना गदर, ऑप्शन 4 इब्नुल वक्त। जवाब हो जाएगा डिप्टी नज़ीर अहमद अपनी किताब ताज़ीरात हिंद की बदौलत तहसीलदार बनाए गए।
दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ताज़ीरात हिंद जो है वो उन्होंने इंडियन पैनल कोड का उर्दू में तर्जुमा ताज़ीरात हिंद के नाम से किया था। अगला सवाल है, अल्लामा शिबली ने किनसे फ्रेंच सीखी? ऑप्शन 1 है डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट, ऑप्शन 2 प्रोफेसर आर्नल्ड, ऑप्शन 3 गारसा दतासी, ऑप्शन 4 प्रोफेसर रसल। जवाब हो जाएगा अल्लामा शिबली ने प्रोफेसर आर्नल्ड से फ्रेंच सीखी। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, दास्तान अमीर हमज़ा की अव्वल जिल्द किस नाम से मानून है? ऑप्शन 1 है नौशेरवान नामा, ऑप्शन 2 हरमुज़ नामा, ऑप्शन 3 हनुमान नामा, ऑप्शन 4 संदली नामा। जवाब हो जाएगा दास्तान अमीर हमज़ा की जो अव्वल जिल्द है वो नौशेरवान नामा के नाम से मानून है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, किस मुहक्किक ने तस्करे को जवाहिर रेज़े कहा है? ऑप्शन 1 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन 2 मौलवी अब्दुल हक, ऑप्शन 3 अल्लामा शिबली नोमानी, ऑप्शन 4 काजी अब्दुल वदूद। जवाब हो जाएगा तस्करों को जवाहिर रेज़े कहने वाले जो मुहक्किक हैं वो मौलवी अब्दुल हक हैं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, इहाम गोई से क्या मुराद है? ऑप्शन 1 है मानवियत, ऑप्शन 2 उसलूबियत, ऑप्शन 3 रियायत लफ्ज़ी, ऑप्शन 4 कोई भी नहीं। जवाब हो जाएगा इहाम गोई से मुराद जो है ये रियायत लफ्ज़ी है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, तहरीक इस्लाह ज़बान का अहम मकसद क्या था? ऑप्शन 1 है ज़ुमानी अल्फाज का इस्तेमाल, ऑप्शन 2 उर्दू को हिंदी के असरात से पाक करके फ़ारसी से करीब लाना, ऑप्शन 3 संस्कृत का इस्तेमाल, ऑप्शन 4 सनाए बदाए का इस्तेमाल। जवाब हो जाएगा तहरीक इस्लाह ज़बान का अहम मकसद जो था वो उर्दू को हिंदी के असरात से पाक करके फ़ारसी से करीब लाना था। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, वो कौन सा शायर है जो इहाम गोई और इस्लाह ज़बान दोनों तहरीकात से मुंसलिक था? ऑप्शन 1 है आबरू, ऑप्शन 2 यकीन, ऑप्शन 3 हातिम, ऑप्शन 4 आरजू। जवाब हो जाएगा वो शायर जो इहाम गोई और इस्लाह ज़बान दोनों तहरीकात से मुंसलिक था वो हातिम था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, निर्मला नावल में कितने घरानों के अफराद शामिल हैं? ऑप्शन 1 है 4, ऑप्शन 2 है 5, ऑप्शन 3 है 2, ऑप्शन 4 है 3। जवाब हो जाएगा निर्मला नावल में 3 घरानों के अफराद शामिल हैं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निर्मला नावल जो है ये मुंशी प्रेमचंद का नावल है। अगला सवाल है, बेदी की कहानी लाजवंती किस पर मबनी है? ऑप्शन 1 है किसानों पर, ऑप्शन 2 फसादात पर, ऑप्शन 3 इश्क की मौत, ऑप्शन 4 मज़दूरों पर। जवाब हो जाएगा बेदी की कहानी लाजवंती जो है ये फसादात पर मबनी कहानी है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, बेदी का वो कौन सा अफसाना है जो चर्च की झूठी रवायात पर चोट करता है? ऑप्शन 1 है लाजवंती, ऑप्शन 2 गरहन, ऑप्शन 3 यूकलिप्टस, ऑप्शन 4 10 मिनट बारिश में। जवाब हो जाएगा बेदी का वो अफसाना जो चर्च की झूठी रवायात पर चोट करता है वो यूकलिप्टस है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, 2 फरलांग लंबी सड़क किसका अफसाना है? ऑप्शन 1 है बेदी, ऑप्शन 2 कृष्णचंद्र, ऑप्शन 3 गुलाम अब्बास, ऑप्शन 4 प्रेमचंद।
جواب ہو جائے گا 2 فرلانگ لمبی سڑک، یہ کرشن چند کا افسانہ ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 2 ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، ماہ طلعت کس داستان کا کردار ہے؟ آپشن 1 ہے فسانہ آزاد، آپشن 2 طلسم ہوشربا، آپشن 3 ہے گل صنوبر، آپشن 4 فسانہ عجائب۔ جواب ہو جائے گا ماہ طلعت نامی کردار جو ہے یہ داستان فسانہ عجائب میں موجود ہے۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 4 ہو جائے گا۔ داستان فسانہ عجائب جو ہے یہ رجب علی بیگ سرور کی داستان ہے۔ اگلا اور آخری سوال ہے، بھرت منی کا کس نثریہ صنف سے تعلق تھا؟ آپشن 1 ہے ڈرامہ، آپشن 2 ناول، آپشن 3 سوانح، آپشن 4 داستان۔ جواب ہو جائے گا بھرت منی کا تعلق جو تھا وہ نثریہ صنف ڈرامہ سے تھا۔ درست جواب اس کا آپشن نمبر 1 ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے سوال و جواب ختم ہوئے۔ اگر آپ کو ہمارے یہ سوال و جواب پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملیں۔ بہت شکریہ۔